Good morning, students. Uh, now, this is Computer Fundamental. Computer Fundamental is the first chapter of class 7. In this chapter, we will study uh, what are the parts of computer system, what are the parts of uh, components inside the CPU box, what are computer languages, what are its classification, what is binary number system, what is decimal number, how decimal number converts in binary, how binary converts in decimal, classification of computer software. That's all. So in my first chapter I am discussing what is computer fundamental. Simply, a computer, 1 minute. A computer system can be considered made up of two main components, the hardware and the software. Means computer made up of two parts, hardware and software. So what is hardware? So hardware is the physical part of computer that we can only touch it. Like when we press the buttons of keyboard, after that the instruction that given by the keyboard will be displayed on desktop or monitor screen. So when we move the mouse, then the pointer of mouse also move in your screen. So hardware is the that part of computer that we can only touch it, but the software is the logical part. Logical means those part that we can only feel it, only see it. Means the parts of computer that we can only see and feel. It's called software. So hardware components, these are hardware and software. Software programs. But now in this chapter we will learning what is computer languages. So software or programs are written in computer languages. Means instruction given in a computer is called software. So in this chapter we will learn what is classification of computer languages. So in our life there are two types of languages, low level language and high level language. So what is low level language? So first of all, low level language is a machine oriented language. It is particularly designed for programming languages. Means it is used for programming languages. There are two types of low level language, machine language and assembly language. So now machine language is the language in which instructions are given in the form of 0 and 1, because uh, 0 and 1 is the binary language and computer can understand only the binary language. No any language like English, Hindi, Sanskrit, Bhojpuri is understood by the computer. So computer understand only the machine language. Machine language are always in the form of 0 and 1. Machine language programs are machine dependent. That is, program written from one computer may not work on another. This is the big demerit of machine language. Means when you run any program that work only in your computer, it does not work in any other computer. This is the demerit of machine language. It is very difficult for programmer to write program in this language. Now means machine language and now other language is assembly language. Assembly language is a language in which instructions are given in the form of short words, that is called mnemonics. So assembly language is just like machine language, but in this instructions are given in the form of mnemonics. Mnemonics are like short words like load, LOAD. Load is the full name, but in assembly language load is written in the form of LD. MOV move, but in the assembly language move is written in the form of MOV. Addition, addition is the big name, but when we write in assembly language it is written in the form of ADD. This is called assembly language.
high level language. What is high level language? What are its advantages? So high level language is the language in which programmers are written using English words and mathematical symbol. It is very easy for programmer to learn and use high level language. ओके तो अभी तक जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, इसमें क्या क्या मैंने डिस्कस किया कि कंप्यूटर फंडामेंटल जो होता है वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना है। एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वैसे पार्ट्स को बोलेंगे जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। जिसको टच नहीं कर सकते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो भी हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर फंडामेंटल में। उसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेज, दो टाइप्स के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज का खासियत ये है कि ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें कंप्यूटर किसी लैंग्वेज को समझता नहीं है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर सिर्फ दो ही लैंग्वेज को समझता है, एक होता है स्ट्रिंग 0 एंड 1, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज ये दो टाइप्स का लैंग्वेज होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज का दो टाइप्स होता है, एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए इसका एक ट्रिक है, जैसे हाई और लो। हाई मतलब अच्छा हुआ, अच्छा क्वालिटी का हुआ, लो मतलब एकदम बेकार। तो मतलब जो लोग होते हैं वो लो का यूज नहीं करना चाहेंगे और हर कोई हाई का यूज करना चाहेंगे। तो लो का डिमेरिट है क्या? देखिए इसमें दो टाइप का मैंने बताया कि एक मशीन लैंग्वेज होता है, एक असेंबली लैंग्वेज होता है। तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर ही समझ पाता है, कोई उसे प्रोग्रामर समझ नहीं पाता है। तो क्या बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई लिखा हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल तो ये आप आराम से समझ रहे हो क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स में है। अगर यहाँ 014301010001 ऐसा लिखा रहता तो क्या आप समझ पाते कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो समझ पाता कौन? सिर्फ कंप्यूटर, ठीक है। तो वो मशीन लैंग्वेज हुआ। तो कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर दो टाइप के लैंग्वेज को समझते हैं, एक मशीन लैंग्वेज एक असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दी होती है, बट असेंबली लैंग्वेज जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो नेमोनिक्स के फॉर्म में होते हैं। नेमोनिक्स क्या होता है? कोई भी वर्ड्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं वो होते हैं नेमोनिक्स। जैसे कि लोड तो उसको हम लोग LD लिखते हैं, मूव उसको लिखेंगे MOV। अब अगर हम लोग को लिखना है जंप तो JMP लिखेंगे, ठीक है। एडिशन लिखना है तो ऐड लिखेंगे। तो ये सारा शॉर्ट फॉर्म को नेमोनिक्स बोलते हैं। तो मैं मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो टाइप्स के होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज होते हैं और एक क्या होते हैं, एक होते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब हम लोग पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है एंड उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्रामर्स आर रिटेन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। Means programmer are written using English words and mathematical symbols. It is very easy for programmers to learn and use high level language. Okay, and मीन्स अब आपको समझाता हूँ हिंदी में, ठीक है। कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको प्रोग्रामर समझ सकता है, ठीक है। उसको इंग्लिश वर्ड्स में होते हैं, मैथमेटिकल के कुछ सिंबल होंगे तो आसानी से लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये क्या लिखा गया है, ठीक है। आसानी से यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका देखिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। ये होता क्या है? तो ये एक्चुअली प्रोग्रामर रिटेन इन दिस लैंग्वेज आर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड देन अदर लो लेवल लैंग्वेज। मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी में कि इसमें आपका जो वर्ड सही से समझ में आ रहा है कि इससे प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है कि वहाँ हो क्या रहा है। सेकेंड नंबर है डिबगिंग। अब देखिए इसमें डिबगिंग का मतलब क्या होता है? डिबगिंग मतलब होता है एरर को फाइंड करना। देखिए जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कितना भी कर लीजिए आपका एरर फाइंड अगर छोटा सा मिस्टेक है तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि देखिए डिबगिंग में जैसे क्या होता है कि प्रोग्राम में कोई भी एरर आ गया, आप पूरा इसमें दो टाइप में प्रोग्राम रन होते हैं। एक तो होता है कि पूरा प्रोग्राम आप कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जहाँ एरर है वहाँ वो डिनोट करेगा रेड से। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रेड वर्ड से डिनोट कर रहा है तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एरर है, इसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है, उसी में एक और टाइप्स होता है। इसमें क्या है कि आप प्रोग्राम कर रहे हो, एक लाइन किए हो, जब सेकंड लाइन इंटर किए हो तो फर्स्ट लाइन में जो एरर होगा उसको सुधारने बोलेगा। अगर आप सुधार लोगे तो नेक्स्ट लाइन में जाने बोलेगा। तो उसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सिंबल देखें रेड कलर शो कर रहा है तो मतलब हाँ इसमें एरर है, तो पता चल जाएगा। तो मैंने जो आपको बताया अभी वो होता है डिबगिंग, मतलब एरर को फाइंड करना। तो इसका एडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसमें आसानी से एरर फाइंड हो जाता है। थर्ड नंबर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब होता है इससे हम लोग वन प्लेटफॉर्म से अदर प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं, ठीक है। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज आर द मशीन इंडिपेंडेंट्स। Programmer do not require details of underlying hardware to write programs.
मीन्स प्रोग्राम रिटन फ्रॉम वन कंप्यूटर कैन बी एग्जीक्यूटेड टू द अदर कंप्यूटर। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, बेसिक हो गया, फॉर्ट्रेन हो गया, पास्कल हो गया, C++, जावा हो गया, ये सब का क्या है, अगर आप एक कंप्यूटर पर आए हो, अगर अगर आप चाहते हो कि अपने कंप्यूटर स्कूल के कंप्यूटर में रन करवाना, तो वहाँ आसानी से रन कर सकता है, क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने इसका बेसिक डिफरेंस समझा दिया। लो लेवल लैंग्वेज बेकार लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एक बेस्ट लैंग्वेज जिसको हर कोई यूज कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। लो लैंग्वेज का डिमेरिट यही है कि वो इसमें दो टाइप्स होते हैं, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। मशीन वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, और असेंबली में आपका जो भी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग का है, आज हम बेसिक पढ़ा रहे हैं बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम वैसा नंबर होता है जिसमें दो स्टेट्स होते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ 0 और 1 का ही यूज होगा, इसके अलावा कोई नंबर का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वो बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, मतलब द नंबर दैट आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर. One other number is decimal number. The number that are expressed in the form of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 means here 9 number. Sorry, 0 to 9 means here 10 number. So these 10 numbers are called decimal number. Okay. The base of binary number is 2 and the base of decimal number is 10. अब अच्छा, इसमें बेस ऑफ बाइनरी नंबर 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसका स्टेट्स क्या था, 2 था, जो था 0 एंड 1। अब डेसिमल नंबर का यहाँ पे बेस लिखा हुआ है 10। क्या क्या है, 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लो आप लोग, इसमें टोटल 10 नंबर आएंगे, 10 डिजिट आएंगे, तो इसलिए इसका लिखा गया है बेस ऑफ डेसिमल नंबर 10। ओके, दैट्स ऑल। तो आज वाले के लिए इतना ही। अब कल जो जो क्लास होगी उसमें मैं जितना पढ़ाया हूँ सारा का PDF मैं दे दूँगा, आप लोग नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे क्या किस तरह से वो कन्वर्ट करते हैं। बहुत इजीली मेथड है, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। ओके, हैव ए नाइस डे।